Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at your fingers on the behalf of Shivbrat Singh Children Academy, Jaunpur. And I hope that all these videos or all the series of the videos is just helping to clear your concept, and you are able to clear your concept at your homes by watching all these videos. So as you know, in previous video we have discussed about the male reproductive system part number 1, in which we have taken the introduction of the male reproductive system, in which we have discussed about the primary and secondary sex organ, and later on we have discussed in very detail about the testis. Okay, so today we will start with accessory or secondary sex organ. Those are related with your male reproductive system. So without wasting time, I am starting here with accessory or secondary sex organ. So before we start with accessory or secondary sex organ, there are certain important terms or events as per your NEET or competitive examination. So we are going to find out all those. So question number 1 that may arise, that how scrotum is able to maintain lower temperature than the body temperature. It's quite often that we have told you earlier that in the scrotum, testis is just enclosed in the scrotum, and scrotum is just provide the favorable temperature or atmosphere for the production of the male gamete, that is obviously sperm. तो क्या ऐसा होता है स्क्रोटम के पास कि वो बॉडी के टेम्परेचर से कम, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, कैसे मेंटेन करता है? तो इसका आंसर ये है बेटा, स्क्रोटम इज एबल टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर बाय द वी कैन से sweat gland, and as you know sweat gland will be responsible for sweating. And as you know, sweating due to sweating there will be cooling. Sweating की वजह से क्या होगा? Cooling होगा. And most importantly, that's why the skin color in the area of the scrotum or nearby areas is darker, क्योंकि वहाँ पे sweating ज़्यादा होती है. तो आपके ऐसे बॉडी के पार्ट्स जहाँ पे sweating ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली वो क्या हो जाते हैं, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स के कंपेरिजन में डार्कर हो जाते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटॉस मसल्स एंड क्रीमास्टर मसल्स. डेटॉस एंड क्रीमास्टर मसल्स, obviously all these terms are out of your board syllabus, but you have to clear your concept. So that's why I'm just introducing all these terms, but these are not a part of your NCERT as well as not part of your board examination. So Detos muscles and cremaster muscles also help to maintain the temperature. How? By contraction and relaxation. Obviously बेटा अगर मसल्स हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होगा. ठीक है. अब आपने देखा होगा बहुत यूनिक इवेंट्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन. स्क्रोटम जस्ट टाइटन अप, यानी जहाँ पे आपका टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर बंद है, जब विंटर का सीजन होता है तो वो टाइट हो जाता है, और टाइट होने के साथ साथ वो ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाता है. इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन इन द डेटॉस एंड क्रीमास्टर मसल्स. जब क्रीमास्टर और डेटॉस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, आपके जो स्क्रोटम है वो टाइट हो जाएगा और एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव कर जाएगा. और इसी का जो रिवर्स यानी वाइस वर्सा कैसा होगा, जब वो रिलैक्स करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्रोटम एकदम ढीला पड़ जाएगा, और उसके साथ साथ क्या होगी, जो आपके टेस्टिस ऊपर की तरफ आई थी वो नीचे की तरफ चली जाएगी. यू हैव ऑब्जर्व इट ड्यूरिंग द विंटर एंड समर सीजन. अगर नहीं किया है तो कभी ऐसा फील करिएगा, आप देखेंगे कि जब ठंडी का सीजन होता है तो आपका जो स्क्रोटम है वो टाइट हो जाता है, और जो गर्मी का सीजन होता है वो लूज हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? कॉन्सेप्ट इज बिहाइंड दिस दैट व्हेन डेटॉस मसल्स will contract. In that condition scrotum tighten up, यानी स्क्रोटम क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, एंड वाइस वर्सा.
एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब जो रिलैक्स करेगा तो लूज हो जाएगा। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ऐसा क्यों होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और जब सरफेस एरिया को बेटा इंक्रीज कर दिया जाएगा तो सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं आपके टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या है, व्हेन क्रीमास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन क्रीमास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन क्रीमास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, टेस्टिस मूव्स अप एंड वाइस वर्सा। यानी इसी तरह से जब क्रीमास्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर जब वो रिलैक्स करेंगी तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक और है बेटा, दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज द सेकंड, देयर इज अनदर टर्म दैट इज व्हाट, पैम्पिनीफॉर्म प्लीक्सिस। ओके, ये बेटा पैम्पिनीफॉर्म प्लीक्सिस क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। Pampiniform plexus, as you know, the arteries, those are carrying the blood into the scrotum, or we can say that in the testis the blood is warm। वो blood कैसा होता है? warm, क्योंकि हम लोग क्या हैं, warm blooded animals हैं। तो जो blood आ रहा है हमारे body part से कहाँ, testis की तरफ, वो भी warm होगा। और अगर वो blood warm है बेटा तो कहीं ना कहीं वो temperature को affect करेगा। तो उसको avoid करने के लिए क्या होता है, Pampiniform plexus। ये क्या होता है बेटा, Pampiniform plexus, this is the network of veins, network of veins around the arteries, those supplying the blood to the testis। ठीक है, जो टेस्टिस को बेटा ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनके पास नेटवर्क होता है वेंस का, और ये जो नेटवर्क है वेंस का ये इंश्योर करता है कि उस एरिया में यानी टेस्टिस में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है उसको नॉर्मल कर दिया जाए। एंड एक्ट एज काउंटर करंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर, दिस लाइन यू हैव टू बी रिमेंबर। क्यों? क्योंकि जो पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सेस होते हैं ये कहीं ना कहीं स्क्रोटम में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, नेटवर्क ऑफ वीन्स हैं आर्टरीज के अराउंड, और ये काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर की तरह काम करते हैं। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर आगे चल के आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक, अब इसके बाद हम सीधा मूव करेंगे आपका जो अगला टॉपिक है दैट इज व्हाट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और उसमें हम देखेंगे बेटा उन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, वी विल स्टार्ट विथ एपिडिडाइमिस, देन आफ्टर एपिडिडाइमिस वी विल डिस्कस अबाउट द वास डिफरेंस दैट इज ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस, एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्टेन काइंड ऑफ ग्लैंड्स। इन दोज ग्लैंड्स देयर इज अ पेयर्ड ग्लैंड दैट इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल। आफ्टर सेमाइनल वेसिकल we will also discuss about the prostate gland is single, and in the last we will also discuss about the Cowper's gland, and Cowper's gland, as you know, also known as bulbourethral gland. So these three glands as well as a conducting pathway, that is what vas difference is the today's discussion point. And then after we will discuss about the external genitalia, and in external genitalia we will discuss about the scrotum. So here we are starting with secondary sex organs, and in secondary sex organ we will discuss about the certain ducts. In those ducts we have earlier discussed about the rete testis. Okay, we have also discussed about vasa efferentia, these two are earlier discussed. एक बचा हुआ है बेटा जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, वास डिफरेंस। ओके, और इसके साथ साथ एक और यहाँ से हम देखेंगे एपिडिडाइमिस। All these are very very important for your exams. Then after we will discuss about the certain kind of glands. In those glands there are paired gland, those are known as seminal vesicle and Cowper's gland. ये दोनों क्या होती है बेटा, आप ये दोनों पेयर्ड होती हैं। कैसी होती हैं? पेयर्ड होती हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा एक सिंगल ग्लैंड भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, prostate gland. Then after we have to discuss about the external genitalia, and in external genitalia we will discuss about the penis, and we will also discuss about
scrotum. Okay, so straightforward, we will start with your gland number 1 or accessory structure number 1, that is what? Epididymis. Okay, so we will start here with epididymis, and as you know, during the during the sectional view, we have seen that these were the rete testis, and rete testis were just communicating with vas efferentia, and vas efferentia was terminating in a highly convoluted structure, and those were epididymis. So this one is what? The location of the epididymis. ये टेस्टिस है बेटा, टेस्टिस से लगा हुआ रिटे टेस्टिस, और रिटे टेस्टिस फिर वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया जाके सीधा ओपन हो रही थी कहाँ? एपिडिडाइमिस में. तो अगर हम बेसिकली देखें एपिडिडाइमिस को, तो एपिडिडाइमिस हमको कुछ इस तरह से दिखने वाली है. एपिडिडाइमिस का आपको कुछ इस तरह से दिखेगी बेटा. अब ये जो एपिडिडाइमिस है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. ये आपका हेड पोर्शन है, ये आपका बॉडी पोर्शन है, और ये आपका टेल पोर्शन है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्या एपिडिडाइमिस? दिस इज हाईली convoluted structure, और वी कैन राइट इट ट्यूब नियरली 8 मीटर्स. कितनी होती है बेटा? 8 मीटर की, और हम यहाँ कह सकते हैं नियरली 23 फीट के आसपास होती है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है. एंड रिसीव immature sperm from seminiferous tubule via vasa efferentia. यानी वासा एफरेंसिया किसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो आपका स्पर्म बना था, उसके बाद ल्यूमेन में रिलीज़ किया गया था, फिर वहाँ से उसको कैरी करके कहाँ तक पहुँचाने का काम किया उसने? एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है बेटा? एपिडिडाइमिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म. ये स्पर्म का मैचुरेशन कराएगी, एज वेल एज वी कैन राइट प्रोवाइड motility we can write, provide motility, as well as in the last temporary storage of sperm. लेकिन कितनी देर के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 24 घंटे के लिए. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. act as recycling center for damaged sperm. यानी किसी भी स्पर्म की अगर डेथ हो जाती है, वो डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? रिसाइकलिंग सेंटर की तरह काम करते हैं. इसको यानी उस स्पर्म को जिसकी डेथ हुई थी उसको खा के ख़त्म कर देंगे. ध्यान ये देना है बेटा, अभी तक मैंने आपको बताया कि जो आपका स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आ गया? एपिडिडाइमिस में आ गया. एपिडिडाइमिस में आने के बाद उसने क्या किया? मैच्योरिटी को गेन किया. मैच्योरिटी को गेन करने के बाद अभी उसके पास फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ वो अभी पूरी तरह से मोटाइल नहीं है. होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो आया है इस धरती पे, इस सृष्टि में आया, तो सबसे पहले वो घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो पैर बढ़ाएगा. तो वही हाल किसका है? स्पर्म का है. वो आया कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. उसने फिर घुटने के बल चलना स्टार्ट किया. चलने के बाद अब उसने खड़ा होना सीखा है, और फिर धीरे धीरे पैर बढ़ाना शुरू किया, लेकिन अभी वो दौड़ नहीं सकता. वो फाइनली कब दौड़ेगा? जब मेल उसको इजैकुलेट कर देगा. इजैकुलेशन के बाद वो क्या हो जाते हैं? मोटाइल हो जाते हैं. ठीक है, जैसे होता है ना, छोटा बच्चा है, उसको अगर हम कुछ लालच देंगे, किसी चीज़ को दिखाएंगे, तब वो आपकी तरफ आने का प्रयास करेगा, अदरवाइज वो खड़ा रहेगा. तो सेम कंडीशन वही कि जैसे ही स्पर्म क्या होते हैं, बॉडी से बाहर आते हैं, ये तुरंत फ्री हो जाते हैं. होता क्या है, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो उस समय तक बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं आप लोग, और जैसे ही टीचर बाहर जाता है आप लोग फ्री हो जाते हैं और अपने हिसाब से बातें करना शुरू कर देते हैं. तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है. तो क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि अभी तक अगर इस पर मूव नहीं कर सकता है, तो एपिडिडाइमिस में या एपिडिडाइमिस से वो वास्ट डिफरेंस तक पहुँचेगा कैसे?
ऐसा है कि नहीं है? अभी तक मैंने बताया कि उसने खड़ा होना सीखा, धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस तक पहुंच जाता है? ऐसा कौन सा जादू हो जाता है बेटा? जादू ये है कि आपका एक जो है स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ फ्लूइड को सेक्रेट करता है, और जो एपिडिडाइमिस के मसल्स हैं उसमें पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। सो फ्लूइड जो कि आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी वजह से, और उसके बाद जो आपके एपिडिडाइमिस के मसल्स हैं उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, तो उसके बाद स्पर्म जो एपिडिडाइमिस से है वो वास्ट डिफरेंस तक पहुंचेगा। तो एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस तक स्पर्म कैसे पहुंचेगा? आंसर इज सिंगल, बाय मीन्स ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है ना? तो वो चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट you have often seen in your alimentary canal, and pressure exerted by fluid of seminiferous tubule help in transportation of sperm, from epididymis to वास्ट डिफरेंस, यानी एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस तक स्पर्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और उसके साथ साथ बेटा किसके द्वारा? आपका जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा। वो मजबूर कर देगा कि स्पर्म अब किसको? एपिडिडाइमिस को छोड़कर कहाँ जाए? वास्ट डिफरेंस में जाए। और ध्यान रखिएगा एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो नोन एज, वी विल राइट हियर, एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज हाउस ऑफ स्पर्म, यानी टेम्प्रोरी स्टोरेज हो रहा है तो सबसे पहले स्पर्म आके यहीं पे स्टोर होगा। तो प्राइमरी स्टोरेज हाउस है कौन? एपिडिडाइमिस। सेकेंडरी स्टोरेज हाउस है कौन? वास्ट डिफरेंस। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, इन द लास्ट वी विल राइट हियर नोट, एपिडिडाइमिस हैज 3 पार्ट्स। इसके पास बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, या हम लिख सकते हैं हेड, बॉडी एंड टेल। इसी को आप लिख सकते हो एंटीरियर, ओके बेटा, इसको आप लिख सकते हो मिडिल, और इसको आप लिख सकते हो पोस्टीरियर। 3 रीजन होते हैं। या इसी को हम और टेक्निकल टर्म्स में अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं बेटा कैपुट एपिडिडाइमिस। कैसे याद रखेंगे? कैप, और कैप कहाँ लगाते हैं? हेड पे लगाते हैं ना, तो कैपुट हो जाएगा बेटा। कैपुट एपिडिडाइमिस के बाद दूसरा है बेटा आपका ऑर्पस एपिडिडाइमिस, और तीसरा होता है कॉडा एपिडिडाइमिस। ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर हैं स्पर्म के मैचुरेशन में उनको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। और आउट ऑफ दीज 3 जो आपका ये टेल पोर्शन है जिसको आप कॉडा एपिडिडाइमिस कहते हो, हियर देयर इज ए स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यानी यहीं पे किसका स्टोरेज होता है? स्पर्म का। तो आप कह सकते हैं स्पर्म जो स्टोर हो रहे हैं कॉडा एपिडिडाइमिस में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम दिस कॉडा एपिडिडाइमिस देयर विल बी अनदर स्ट्रक्चर दैट विल अराइज नोन एज वास्ट डिफरेंस, यानी इसी कॉडा एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस अराइज होगा, और इसी कॉडा एपिडिडाइमिस वाले रीजन में कौन? आपका स्पर्म भी स्टोर हो जाएगा। तो एक बार क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं। एपिडिडाइमिस नियरली 8 से 12 मीटर लॉन्ग होती है, हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। इसका काम है स्पर्म को टेम्पररी स्टोर करना, रिसाइकलिंग रिजर्वायर की तरह काम करना, यानी यहीं पे आके आपका स्पर्म फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को गेन करता है। इसके पास 3 पार्ट होते हैं, उसमें से जो लास्ट पार्ट है आपका पोस्टीरियर, जिसको हम कॉडा एपिडिडाइमिस में कहते हैं, यहाँ पे स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाता हूँ और आपको अगले स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलता हूँ, दैट इज सिंपली व्हाट? वास्ट डिफरेंस। ओके बेटा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड, दैट इज वास्ट डिफरेंस। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा आपको। 45 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर एंड arises from, you all aware about this, chorda epididymis, question may be twisted, or posterior portion of epididymis, okay।
और आप सभी को इसका फंक्शन मालूम है बेटा, ये क्या करती है, जो मैच्योर स्पर्म है उसको कंडक्ट करने का काम करती है। एंड ये भी आपको मालूम है, व्हेन वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल मीट विथ ईच अदर दे फॉर्म एजाकुलेटरी डक्ट। ये भी आपको मैं अर्लियर बता चुका हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं द जंक्शन where vast difference and seminal vesicle meet, उसको हम बोलते हैं एम्पुला, एंड meet forming the ejaculatory duct। ओके, सो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कुछ खास सिग्निफिकेंट नहीं है। वास्ट डिफरेंस का काम ही है स्पर्म को कैरी करना। ये स्पर्म किस टाइप का कैरी करेगी बेटा, ध्यान रखना है, ये स्पर्म जो कैरी करेगी वो मैच्योर होगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज हाउस फॉर द स्पर्म। यानी प्राइमरी स्टोरेज हाउस क्या था, एपिडिडाइमिस, जहाँ नियरली 1 मंथ के लिए स्पर्म को स्टोर किया जा सकता है। और वास्ट डिफरेंस क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज हाउस है। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, दिस एक्ट एज व्हाट, सेकेंडरी स्टोरेज हाउस, सेकेंडरी स्टोरेज हाउस ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म को यहाँ नियरली 3 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द वैसेक्टोमी प्रोसेस दिस वास्ट डिफरेंस इज कट एंड लाइगेटेड। यानी जब मेल का स्टरलाइजेशन करते हैं तो इसी वास्ट डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यही अगर स्पर्म को कैरी कर रही है और इसी को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो स्पर्म को कैरी नहीं किया जा सकेगा। यानी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते को हमने डिस्टर्ब कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, तो फिर आप उस रास्ते पे मूव नहीं कर पाएंगे। वही हाल यहाँ पे किसके साथ होता है, स्पर्म के साथ होता है। बट ध्यान ये रखना है, आफ्टर वैसेक्टोमी कम से कम 20 इजैकुलेट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद फिर वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो पाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि वास्ट डिफरेंस में स्पर्म स्टोर है और 20 इजैकुलेशन अगर होगा तभी जितने अमाउंट में स्टोर था स्पर्म वो बाहर जा पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 15 से 20 इजैकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी वास्ट डिफरेंस में भी किसका, स्पर्म का स्टोरेज होता है और वो स्पर्म कैसा रहेगा बेटा, मैच्योर रहेगा। तो ये जो भी मैंने बताया किसके बारे में था, वास्ट डिफरेंस के बारे में। दिस इज ऑल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस। यू ऑल अवेयर अबाउट दैट, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ। अब वक्त आ गया बेटा ग्लैंड्स के बारे में जानने का। सो ग्लैंड्स के बारे में हम सबसे पहले जो ग्लैंड डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट, सेमिनल वैसिकल, या कुछ लोग इसको सेमिनल वेसाइकल भी पढ़ते हैं बेटा। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नोट लगाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हियर सिक्रीशन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सिक्रीशन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड एपिडिडाइमिस। यानी इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है, ये दोनों मिलके 5% सीमेन बनाते हैं। यानी टोटल सीमेन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 5% कौन बना रहा है, एपिडिडाइमिस और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सिक्रीशन। उसके बाद नियरली जो सेमिनल वेसिकल है बेटा, ये 70% के आसपास, वैसे एग्जैक्टली हम देखें तो 60 से 70% होता है, 70% सीमेन बनाने का काम करती हैं। यानी मोस्ट ऑफ द सीमेन क्या है, सीमेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सारी ग्लैंड्स जो आपकी हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके साथ साथ काउपस ग्लैंड, तीनों का सिक्रेशन प्लस स्पर्म मिल के सीमेन बनाते हैं। तो सीमेन है जो भी बना हुआ है जितने भी अमाउंट में, उसका नियरली 70% या 60 से 70% बनाने का काम कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल करेगा बेटा। ये कैसी होती हैं, पियर्ड ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है, पियर्ड ग्लैंड होती है। और ये किससे, वास्ट डिफरेंस के साथ मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कुछ पॉइंट्स और देखते हैं यहाँ से फटाफट। सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड जिसका पीएच होता है बेटा 7.4 एंड दैट कंटेन्स कई चीज़ें होती हैं, फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड as well as citric acid and one more thing, prostaglandins। इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। फर्स्ट फ्रक्टोज एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रक्टोज एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ एटीपी फॉर स्पर्म। यानी जो
आपका सिक्रीशन है किसका, सेमिनल वेसिकल का, उसमें से जो फ्रक्टोज है ये क्या कर रहा है, एनर्जी का सोर्स है। इसके साथ साथ अगर हम देखें बेटा अगला जो मैंने बताया आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोज वर सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल एक्ट एज लोकल हार्मोन, एक्ट एज लोकल हार्मोन एंड प्रोवाइड मोटेलिटी टू स्पर्म, यानी ये स्पर्म को मोटेलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगी। एंड दे प्रोवाइड द मोटेलिटी टू द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी होती है, तो वहाँ पे स्पर्म को ये ऊपर की तरफ यानी सर्विक्स से फिर यूट्रस की तरफ मूव कराने का काम करती है। क्यों, आपको मालूम है कि अगर इंसेमिनेशन हुआ है तो जो स्पर्म है वजाइना में डिपॉजिट होने के बाद नीचे की तरफ आ सकता है, तो वो नीचे ना आए ऊपर की तरफ जाए, तो उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स काफ़ी हेल्पफुल है। एक और ध्यान रखना है बेटा, ये एक क्लॉटिंग प्रोटीन जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजिन, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन is also present in the seminal fluid, and this fibrinogen or clotting protein help in the clotting of sperm, or we can write most correct semen, यानी जो सीमेन सिक्रीट हुआ है रिलीज हुआ है उसमें क्लॉटिंग कराने का काम करेगा आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एसिड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सभी क्या करते हैं बेटा, एक पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये जो भी मैंने यहाँ से आपको बताया ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, सेमिनल वेसिकल के बारे में। सेमिनल वेसिकल इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द मेल एंड दिस रिलीज सेमिनल फ्लूइड दैट कंटेन्स ascorbic acid, citric acid, fructose, prostaglandins and certain kind of clotting protein. So this was all about the seminal vesicle. In the last एक note लगाते हैं, this is very important. ये situated at the junction of vas deferens and prostate gland, ये ध्यान रखिएगा कि जो लोकेशन है किसकी, सेमिनल वेसिकल की कभी कभी पूछी जा सकती है कहाँ होती है, तो वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जंक्शन है वहाँ पे मिलने का काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे अगली ग्लैंड जो कि हमारी कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में आप सभी को मालूम है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिंगल ग्लैंड है, जबकि आपकी सेमिनल वेसिकल कैसी थी, ये पेयर्ड थी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होने के साथ साथ ये करती क्या है, जो आपने देखा होगा मिल्की पोर्शन होता है किसका, स्पर्म का या सीमेन में, उस मिल्की पोर्शन को बनाने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन करता है। यानी अगर स्पर्म मिल्की है या सीमेन मिल्की है तो उसको मिल्की क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो मिल्की बनाया गया है सिक्रीशन के द्वारा, जो कि किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड का है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड सिक्रीट करती है बेटा, वो नियरली 20% जो है सीमेन को बनाने का काम करता है, और इसके साथ साथ कुछ उसमें नेचुरल एंटीबॉडीज़ भी होती है जिसको हम सेमिनल प्लाज्मिन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम देख लेते हैं। सो अगली ग्लैंड है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये नियरली कैसी होती है, डोनेट शेप होती है। कैसी होती है, डोनेट शेप, और नियरली जो इसकी शेप एंड साइज़ होती है, शेप एंड साइज़ वो कैसी होती है, गोल्फ के बॉल की जैसी होती है, गोल्फ बॉल, नियरली 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, ये होती कहाँ है, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कह सकते हैं। रिलीज क्या करती है, प्रोस्टेट फ्लूइड, क्या रिलीज करती है, प्रोस्टेट फ्लूइड, जिसका पीएच होता है नियरली 6.5, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड। और ये क्या करती है, मिल्की सिक्रीशन ऑफ सीमेन, यानी जो सीमेन में मिल्की सिक्रीशन है वो किसका काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का है। ऑल्सो कंटेन नेचुरल एंटीबॉडी, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ऑल्सो कंटेन नेचुरल एंटीबॉडी, और उस नेचुरल एंटीबॉडी का नाम है बेटा सेमिनल
प्लाज्मिन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम जैसे उन्होंने देखा सेमिनल प्लाज्मिन, उनको लगा कि सेमिनल वेसाइकिल ने किया, लेकिन नहीं, ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड का पार्ट होता है सेमिनल प्लाज्मिन, जो कि नेचुरल एंटीबॉडी है और ये बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ करने का काम करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्रीशन ऑल्सो कंटेन एल्ब्यूमिन, जो एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और इसके साथ साथ फाइब्रिनोलाइसिन। अब याद करिए आप, फाइब्रिनोजेन जो कि एक क्लॉटिंग प्रोटीन थी, सेमिनल वेसाइकिल ने क्या किया था, रिलीज करके सीमेन को क्लॉट करा दिया था एजैकुलेशन के बाद। तो उस क्लॉट को हटाने के लिए कौन है, फाइब्रिनोलाइसिन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द क्लॉट दैट वाज फॉर्म बाय द secretion of the seminal vesicle is removed by the secretion of prostate gland। और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन थी उसने क्लॉटिंग कराई थी, और फाइब्रिनोलाइसिन क्या कराएगी, क्लॉटिंग को हटवा देगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो किसके बारे में जानना था, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। रिमेंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बेटा, ये जब बर्थ होता है उसके बाद 30 साल तक ग्रो करती है। ठीक, ग्रो कब तक करेगी, नियरली 30 ईयर की एज तक करेगी, उसके बाद इसकी जो ग्रोथ होती है नियरली बंद हो जाती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो 50 साल से ऊपर के पर्सन हो जाते हैं उसमें ये लगातार ग्रोथ करने लगती है और बाद में चल के वो प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेती है। सो दिस प्रोस्टेट ग्लैंड कैन बी रिमूव्ड इफ द एज इज 50+, देन देयर इज़ नो रोल और देयर इज़ नो नीड ऑफ द सीमेन। ठीक है, तो वहाँ से इसको हटाया जा सकता है अगर इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो गई। लास्ट में हम देखेंगे हमारी जो ग्लैंड नंबर 3 है, जिसको हम बोलते हैं काउपस ग्लैंड। काउपस ग्लैंड, बेटा काउपस ग्लैंड भी क्या होती है, पेयर्ड होती है। नियरली दिस इज व्हाट, पी साइज ग्लैंड। कैसी है, पी साइज ग्लैंड है, और सिक्रीट करती है, सिक्रीट लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, that help in transport of sperm, यानी सीधी सी बात है बेटा, अगर ये स्टिकी मटेरियल चिपचिपा पदार्थ रिलीज कर देंगे तो जो स्पर्म है वो आसानी से मूव कर पाएगा, क्योंकि एक मीडियम मिल जाएगा ना, एक फ्लूइडी मीडियम मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से वो क्या करेगा, तैर लेगा या स्विम कर लेगा या मूव कर लेगा। और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म भी कराते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प इन कॉपुलेशन, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कॉपुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना था। एक लास्ट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं, न्यूट्रलाइज द यूरिन प्रेजेंट इन द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि आपको मालूम है यूरिन और स्पर्म के लिए, दोनों के लिए क्या है बेटा, एक ही ट्रैक्ट है। तो आपने देखा है कि अगर स्पर्म बाहर आएगा तो उस समय यूरिन बाहर नहीं आएगी, और अगर यूरिन बाहर आ रही है तो उस समय स्पर्म बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा रेगुलेट की जा रही हैं, एक तो आपका नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसके साथ साथ काउपस ग्लैंड भी ये इंश्योर करती है कि सीमेन के साथ यूरिन ना जाए और यूरिन के साथ सीमेन ना जाए। तो ये था बेटा सारे आपके जो एक्सेसरी ग्लैंड्स थे। अब एक लास्ट में टॉपिक बचा हुआ है किसका, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, तो क्विकली हम उसको देख लेते हैं। उसके पहले नोट यहाँ से लिखते हैं, ऑल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आप सभी को मालूम था, ठीक है, हमें भी पता था कि आपको मालूम है, लेकिन हमने ऐसे ही बताया कि ये काउपस ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हटाऊँ इसको और आगे बढ़ता हूँ, लास्ट टॉपिक है, बोर मत होइए बेटा, लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। मुस्कुराहट तैरनी चाहिए अब आपके पास। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बहुत तेज़ी से बताता हूँ। 2 स्क्रोटम बता चुका हूँ, और पीनस। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताना है। स्क्रोटम इज़ द पाउच दैट इनक्लोजेस द टेस्टिस, टेस्टिस को इनक्लोज करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, बहुत सारा काम करता हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अब बताना है किसके बारे में, पेनिस के बारे में बेटा। ये क्या होता है, दिस इज हाईली इरेक्टाइल ऑर्गन। ये बेटा हाईली इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, और क्यों होता है, आपकी बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें हाई पावर होती है किसकी, इरेक्शन की। ध्यान ये दीजिएगा कि हाईली इरेक्टाइल ऑर्गन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यूज जिसको आप बोलते हो कॉर्पोरा कैबरनोसा
एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोशम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोशम, यानी दो स्पेशल टिश्यूज़ हैं। ये जो बेटा आपका कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, इसके जो नंबर्स होते हैं 2 होते हैं, 2 इन नंबर, और ये जो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोशम है कितना होता है, 1 होता है। अगर हम देखें एक इसका टिपिकल स्ट्रक्चर, तो इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, देयर आर टोटल 3 पार्ट्स। एक होता है बेटा रूट, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, ठीक है, जिसको आप हेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं। अब रूट एकदम बेसल पोर्शन है, बॉडी जो आपको बाहर दिखती है, और जो टिप होता है उसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं या हेड कहते हैं, जो कि कवर होता है, कवर्ड विथ 4 स्किन, और उसी का नाम है प्रीप्यूस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा ये जो प्रीप्यूस होता है, इसके पास क्या होती है, एक स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीप्यूनिक ग्लैंड, यानी जो आपका प्रीप्यूस है इसके पास कौन सी ग्लैंड है, प्रीप्यूनिक ग्लैंड है। उस प्रीप्यूनिक ग्लैंड का दूसरा नाम है ग्लैंड ऑफ टाइसन, दैट फॉर्म इस मैग्मा, यानी आपने देखा होगा इस फोल्ड स्किन के आसपास कुछ वाइट कलर के हम कह सकते हैं दानेदार चीज़ें होती हैं, एक्चुअली बहुत ही फाउल स्मेल आती है। तो वो जो इस मैग्मा है वो इसी प्रीप्यूनिक ग्लैंड या जो ग्लैंड ऑफ टाइसन है इसके द्वारा रिलीज़ किया जाती है, और वो सोर्स है नरिशमेंट किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब आप नहा रहे हो उस समय उसको आसानी से यानी बहुत ही नॉर्मल तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बेटा डायग्राम के माध्यम से हम दिखाते हैं कि एक्चुअल में वो टिश्यूज़ कैसे होते हैं। तो अगर आप देखें एक सेक्शनल व्यू, तो यहाँ पे आपको 2 टिश्यूज़ मिलेंगे, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक नीचे की तरफ मिलता है बेटा कॉर्पस स्पॉन्जियोशम, ठीक है। तो ये जो आपके दोनों टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा, और यहाँ पे आपको ये जो 2 टिश्यूज़ दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोशम, और ये आपका है बेटा यूरेथ्रा, या इसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ओपनिंग। ये आपके अंदर जो दिख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ दिख रहे हैं, और ये बाहर जो है इसको हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इतने ही पार्ट्स थे कहाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नंबर 2 में, ठीक। अब जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता के जाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो डायग्राम बनाने को पूछा जा सकता है, डायग्राम में बी गिवन एंड मे बी आस्क फॉर द लेबलिंग एज वेल एज देयर आर सर्टेन टर्म्स, वाई पीनस इज हाईली इरेक्टाइल, what is the role of seminal vesicle, prostate gland and corpus gland, what is the role of epididymis, what is the role of vas difference। बट जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है कि लेडिंग सेल में और सर्टोली सेल में क्या अंतर है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताऊंगा, लेडिंग सेल और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे इंटरलिंक्ड है, या सर्टोली सेल और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस का क्या रिलेशन है, ठीक है। बट इतना जान लीजिए कि जो सर्टोली सेल्स हैं उनको आपको मालूम है नर्स सेल या सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, वो इनहिबिन हार्मोन रिलीज़ करती हैं। इनहिबिन हार्मोन के साथ साथ वो क्या करती हैं, जो स्पर्मेटोजोआ डेवलप कर रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और आपकी जो एपिडिडाइमिस होती है बेटा, ये वॉल्फियन डक्ट से अराइज होती है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कौन सी डक्ट, ऑल्फियन डक्ट जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हम लोगों में दिखती है, और ये लेटर ऑन क्या बनाती है, एपिडिडाइमिस। ये क्वेश्चन आपके हायर लेवल के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सर्टोली सेल का अगर कोई 2 फंक्शन पूछ ले तो आप बताओगे सर्टोली सेल नरिश करती हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, इसके साथ साथ बेटा वो क्या करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती हैं। तो अगर हम देखें सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल के बेसिकली 2 फंक्शन है बेटा, एक नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेंगी, स्पर्मेटोजोआ को यानी स्पर्म को, और दूसरा क्या सेक्रेट करती हैं, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यह क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, जो कि बहुत ही इसेंशियल है किसके लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो सर्टोली सेल के मेनली 2 फंक्शन आप याद रखिएगा, होते तो बेटा और भी कई हैं। और एक और होती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, रिलीज
इनहिबिन हार्मोन, और ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रोक देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये क्या देगा, निगेटिव फीडबैक दे देता है, और कुछ समय के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है। जब सफिशिएंट अमाउंट में सीमेन प्रोड्यूस हो जाता है बेटा, तो थोड़े समय के लिए इसको रोका जा सकता है। या प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया तो थोड़ा सा निगेटिव फीडबैक दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब आप FSH हार्मोन ना रिलीज करें। FSH हार्मोन क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो जाके सर्टोली सेल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और ये किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ध्यान ये रखना है कि वो जो आपका FSH है उसको इनहिबिट करने के लिए कौन सा हार्मोन, इनहिबिन निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से बेटा लैडिंग सेल्स है। लैडिंग सेल्स क्या करती हैं, लैडिंग सेल एक्चुअली क्या बनाती हैं, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करती है। तो कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो हम आपको लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप दैट आफ्टर वाचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी डाउट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट लीव इन योर कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल आंसर देयर, and don't forget to provide your valuable feedback, and don't forget to share the video with your friends. So that is all about for today. Jai Hind.